I think everybody will agree to this. NPTI has been a very reputed and Very few engineering colleges. There were some 4 to 5 engineering, and when I joined here, all teachers की एक वो जो कल्चर है जब चीटी दाना लेकर चलती है class. So I went over there. और उसमें एसी लगाओ तो गर्मी नहीं लगती है, बस यही मेरा है। Simple ones. Once you start teaching, initially my initial days like it was very difficult. लाइफ में कभी आगे दिक्कत ना आए। आप अगर Hello everyone, welcome to a new episode of Off the Records presented to you by Humans of HBTU. Today we have among us respected Dr. Girdhari Lal Devnani sir, who is currently serving as USAC Secretary and Associate Dean of Continuing Education and Internal Quality Assurance. Sir is also an alumnus of this institution of Chemical Engineering Batch 2000. Welcome sir. Thank you. Sir, it must be a special feeling to teach in an institution where you have already studied. Being an HBTI alumnus, if you could please bring us back to those days. Yeah, definitely it's a proud feeling that I have studied in this institute and now I am working as a faculty member. So, I would like to tell in those days, very few engineering colleges. There were some 4 to 5 engineering colleges only in UP. It's not like nowadays, like more than 200 colleges are there. And getting admission in BTech was considered to be a very prestigious thing. And it was not easy to get admission. So, options were limited and competition was very high. Competition is still high nowadays, but options are more as compared to older days. Yes. सर आप अगर बता सकें अब आपकी जो ड्राइव या मोटिवेशन रही टीचिंग को एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करने के लिए आफ्टर यू ग्रेजुएटेड. Fortunately, I was very good in academics. From very beginning, from class 10th level, I was topper. So, my friends used to come to clarify their doubts. Okay. So, when I clear their doubts, I get a satisfaction. So, this drive comes from there. When I was in 11th standard, I used to teach class 10th. And similarly, when I was in BTech, I used to teach class 12 students. So from there, when you explain something to somebody and the concept is clear to that person, so the satisfaction you get, it cannot be measured in terms of money. So that drive comes from there. आपको सर कभी ऐसा लगता था कि जब कोई टीचर पढ़ाते थे तो आपको ऐसा लगता होगा कि जब हम पढ़ाएंगे किसी को अपने बच्चों को तो आई विल टीच इन अ बेटर वे और हम ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझा सकते. डेफिनेटली लगता था मुझे कि कभी कभी ऐसा होता था और तो टीचर्स बहुत अच्छे थे बट कभी कभी ऐसा होता था नहीं समझ में आता था और इंडिविजुअल अटेंशन उतना नहीं था. कुछ टीचर्स मतलब सारे टीचर्स अच्छे थे बट जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो कुछ टीचर्स में मिसिंग था. तो मैं सोचता था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि पूरी क्लास से जो है इंटरेक्ट करूं. तो ऐसा था कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का चांस तो हमेशा ही रहता है. सर हाउ डू यू थिंक केमिकल इंजीनियरिंग इज इन इटसेल्फ अ वेरी वाइड ब्रांच and has immense potential. Sir, हम लोग भी chemical engineering ही पढ़ रहे हैं. And considering that HBTI had been a pioneer institution for chemical engineering in India. Very. Yes, sir. आपके views इस पे sir? if without chemical engineering products, आप life imagine ही नहीं कर सकते. You wake up in the morning, you use toothpaste, you go to office or college, you use bike. पेट्रोल कहाँ से आता है? दैट्स अ केमिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट. आप जो फूड जो है जो आप खाते हो वेजिटेबल्स जो है फर्टिलाइजर्स कहाँ से आते हैं? दैट्स अ केमिकल इंजीनियरिंग. तो विदाउट केमिकल इंजीनियरिंग लाइफ इज नॉट पॉसिबल. एंड HBTI हैज अ वेरी ग्लोरियस पास्ट. बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है एंड कोई भी कंपनी कोई भी केमिकल इंडस्ट्री ऐसी नहीं है
जहाँ पे HBTI के एलुमनाई ना हो। okay? और ये एलुमनाई जो है हर मतलब टॉप पोजीशंस पे है। आप कोई भी मतलब इंडिया में कोई भी अच्छी कंपनी आप केमिकल इंजीनियरिंग की ले लो, वहाँ पे टॉप पोजीशन पे जो है केमिकल इंजीनियर सरकोट बटलर HBTI के ही बैठे। यस तो बहुत ही ग्लोरियस जो है पास्ट है और अभी भी बहुत अच्छा है। सर, इसी से अगला मेरा सवाल था हम्म। कि HBTI की अपनी 100 years ऑफ ग्लोरियस लेगेसी है Yes. सर। लेकिन सर रिसेंट ईयर्स में हम लोग भी सुनते हैं, शायद आपके लेवल में भी आप लोग सुनते हैं पढ़ते होंगे कि इट हैज समवेयर लॉस्ट इट्स शाइन, हाँ। या कुछ ऐसे चेंजेस हुए या बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी पर फैकल्टी की उतनी नहीं बढ़ी, Yes. रेशियो नहीं बढ़ा। सर इस पे आपके क्या व्यूज हैं और इंस्टीट्यूशन ऐसे क्या बेटर स्टेप्स ले सकता है कि वो लॉस्ट लेगेसी वापस आ सके? सबसे इम्पोर्टेंट मेन इंस्टीट्यूट की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। स्टूडेंट्स तो हमेशा ही यहाँ से अच्छे आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा और टीचर्स पे लोड बढ़ता है। यू नो अर्लियर द सैंक्शन स्ट्रेंथ वाज 19 और 19 का 19 फुल रहते थे सारे, मतलब रेगुलर अपॉइंटमेंट होते थे। फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, कई सालों से हम लोग 6 फैकल्टी मेंबर्स से जो है पूरा डिपार्टमेंट रन करते हैं। सर 19 केमिकल इंजीनियरिंग। यस, तो 6 फैकल्टी मेंबर्स और 19 फैकल्टी मेंबर्स, तो आप डिफरेंस समझ सकते हो कि जो है कि 3 टाइम्स लोड जो है वो आ रहा है। पार्ट टाइमर्स जो गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आते हैं, बट उनका मोटिवेशन जो है वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो उनको जॉब का उतना सिक्योरिटी नहीं होता है, तो वो अपने ही लिए जो है वो ट्राई करते रहते हैं और जैसे ही उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है दे लीव दिस प्लेस। बट फॉर्चुनेटली जो अभी हमारे प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं शमशेर जी, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि बहुत ही क्वालिटी फैकल्टी जो और इन ह्यूज नंबर उन्होंने रिक्रूट किया। तो आई एम होपफुल कि we will definitely gain that gold medals. So we do hope that happens. सर अगर आप मेंशन करना चाहे अपना फेवरेट बैच टिल डेट या सम ऑफ योर फेवरेट स्टूडेंट्स। सारे ही बैच ओके, और सारे ही स्टूडेंट्स। रीजन बीइंग कि मैंने कभी भी जो है इस बेसिस पे बायस नहीं किया कि समवन इज एकेडमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग और समवन इज वीक, क्योंकि हर स्टूडेंट स्पेशल है। इट मे बी पॉसिबल कि कोई एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो बहुत अच्छी है। तो ये क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, क्योंकि कोई ऐसा बैच नहीं है फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स जो हमारे टच में। सारे ही जो है स्टूडेंट्स बच्चे जो है वो टच में हैं और बहुत अच्छे रिलेशंस। सारे ही बैच उतने ही फेवरेट हैं और सारे ही स्टूडेंट्स जो उतने ही फेवरेट। सर आप करेंटली सर्व कर रहे हैं एज एसोसिएट डीन इन कंटिन्यू एजुकेशन इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस। सर आपको क्या लगता है, हाउ डू यू थिंक दैट टीचर शुड प्रोग्रेस विद टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग टाइम्स टू कोप अप विद क्वालिटी टीचिंग? See, change is the law of nature, isn't it? If you take example, Nokia, Samsung. Nokia once upon a time it was a market leader. Yes. लेकिन अभी वाइप हो गया। तो टाइम के साथ डेफिनेटली जो है अपने को चेंज करना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, तो टीचर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ जो उनको सीखे भी और जो है उससे स्टूडेंट्स को भी जो है जो बेनिफिट हो सकता है। बट एट द सेम टाइम फंडामेंटल्स पे जो है उतना ही एम्फेसिस होना चाहिए। दोनों चीजें जरूरी हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ जो चीजें चेंज हो रही हैं, नए नए रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, इन दोनों का मिक्स होना चाहिए। कुछ जगहों पे एट सम प्लेसेस जो है ये टेक्निकल इनोवेशंस बहुत यूजफुल, लाइक इफ यू वांट टू सी अ प्लांट, आप केमिकल टेक्नोलॉजी में प्लांट का पढ़ते हो, अगर आप लाइव प्लांट देख रहे हो यूट्यूब पे, बहुत अच्छा जो है उससे आपको एक्सपोजर भी होगा और सीखने को मिलेगा। हम लोग के टाइम में दीस थिंग्स वर नॉट अवेलेबल, बट एट द सेम टाइम कि अगर कोई फंडामेंटल कंसेप्ट है तो वो आपको पुरानी बुक से ही जो है, जो फॉरेन ऑथर्स के जो पुराने कंसेप्ट चल रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की जो बेस्ट बुक्स हैं, वो उसी में आपको मिलेंगे जो है। तो दोनों चीजों का मिक्स होना चाहिए जो है कि
पुराने ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स पे भी और ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ जो चीजें आ रही हैं उनके साथ भी जो है एक बैलेंस। Sir, it has always been a word among all our classmates, seniors, हम लोग को सर alumni से भी input मिला that your way of teaching is highly engaging and we can retain maximum in the class itself. सर आपको कितना important लगता है कि टीचर के एस्पेक्ट से कि बच्चे को एक्चुअली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Actually, teaching एक आर्ट है, you know. Everybody cannot be a good teacher. Apart from content knowledge important है, but उसके बाद जो है आपकी क्लास में डिलीवरी आप कैसे डिलीवर करते हैं, Yes. और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कभी भी स्टूडेंट्स को ये आपसे कोई भी चीज पूछने में जो डर नहीं लगना चाहिए। आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो है क्लास में क्रिएट करना है, isn't it? और दूसरी चीज कि आपको बहुत अच्छा फेस रीडर भी होना चाहिए कि आप जो है फेस एक्सप्रेशन से देख के बता दो कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। फॉर्चुनेटली ये एट्रीब्यूट था मेरे में जो है, तो सारे ही स्टूडेंट्स से जो है इंटरेक्शन होता था, और थोड़ा सा भी किसी का जो है माइंड इधर उधर जा रहा है तो मैं तुरंत उसको टोक देता था। Yes. ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टीचिंग, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज एक तरफ है जो है, ये जो है क्वालिटी जो है आई थिंक टीचर्स में होनी चाहिए। सर हम लोग से बहुत लोग आपकी फैमिली के बारे में नहीं जानते, अगर आप उनके बारे में शेयर करना चाहें और उनकी करंट हैपनिंग्स। मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मेरे साथ ही बीटेक किया, केमिकल इंजीनियरिंग से ही बीटेक किया, एंड ही इज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन। पहले इन्फोसिस में थे वो, 20 साल तक उन्होंने इन्फोसिस में सर्व किया जो है। अभी वो वेस्टर्न यूनियन में बहुत लीड पोजीशन। और मेरी वाइफ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है मैनेजरियल लेवल। और रिगार्डिंग किड्स, स्नेहा इज माय डॉटर, वो 12th में है और अभी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रही है, और बेटा दक्ष जो है वो 6th स्टैंडर्ड में है, और वो भी जो है आगे उसका भी प्लान कुछ ऐसा ही है इंजीनियरिंग में। सही, आपका वो तो नहीं मोटिवेशन या आपको देख के वो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ तो जेनेटिक होता है, isn't it? कि एनालिटिकल स्किल्स ये कुछ जो है जेनेटिक वो भी रहता है कि ट्रांसफॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन में जो है। और मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग एजुकेशन बहुत जरूरी है, यू नो। कोई प्रेशर तो नहीं ऊपर से? कोई प्रेशर नहीं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ऑब्वियसली घर में वो देखते हैं, और आई वाज एट IIT रुड़की आल्सो फॉर 3 years, तो जब वो वहाँ का एटमॉस्फेयर देखते हैं तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिलता है कि जो है कि सिर्फ इंजीनियरिंग मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन से आप इंजीनियरिंग में ही जाओ। एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है जो है वो इंजीनियरिंग। सर वो एग्जाम भी बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलप करता है, प्रिपरेशन। बिल्कुल। सर यू आर आल्सो मेंबर ऑफ स्टेट लेवल कमिटी फॉर NEP, तो सर उसकी क्या प्रोग्रेस और चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, और सर आपके व्यूज इस पर क्या हैं कि मदर टंग हम लोग एज अ मोड ऑफ टीचिंग हाई लेवल या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके साथ चैलेंजेस और आपके व्यूज जरा बताइए। देखिए, NEP गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग को बहुत सारी गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट से आ रही हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग अपने सिलेबस में भी जो है वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और प्रॉपर रिसोर्सेज जनरेट करना, ये भी एक जो है चैलेंज है। इसके लिए भी इंस्टीट्यूशंस को जो है वर्क करना है। एंड रिगार्डिंग योर सेकंड क्वेश्चन कि मदर टंग को जो है इट्स नॉट पॉसिबल कि कंप्लीटली हम ट्रांसफॉर्म कर, मिक्स होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी अच्छी बुक्स हैं वो इंग्लिश में हैं। यस। और उनका फिर मदर टंग में ट्रांसलेशन थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट भी है और उतना प्रैक्टिकल भी नहीं। बट मदर टंग भी जरूरी है मेरे हिसाब से। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मिक्स वे में होना चाहिए कि इंग्लिश तो रहना ही है जो है, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आप जो है इंडिया के बाहर कैसे सर्व, ओके। लेकिन मदर टंग भी जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स उसके लिए वो भी जरूरी है, तो दोनों का मिक्स। सर व्हाइल सर्विंग एज USAC सेक्रेटरी, आपको क्या लगता है सर कॉलेज फेस्ट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स की,
और वो फाइन लाइन जो होती है बैलेंस मेंटेन करने की बिटवीन एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स, तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स जो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप टीम वर्क सीखते हो, तो आप कोई टास्क आपको दिया जाता है या ग्रुप में कोई जो है आपको इवेंट मैनेज करना है, तो इससे बहुत सारी जो है स्किल्स आपकी डेवलप होती है। लेकिन ये भी जरूरी है कि पढ़ाई छोड़ के जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई छोड़ के जो है सारा टाइम जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगे। प्रॉपर इसके लिए तरीका ये है कि टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है आप दोनों जगह बहुत अच्छा करेंगे। बट एक मिनिमम लेवल ऑफ एकेडमिक्स जो है वो जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं मीट कर पा रहे। आप जितना भी आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप जो है बॉन्ड हो, लेकिन अगर आप जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो वहां पे आपको काम नहीं है। तो एक बैलेंस जो है एकेडमिक्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जरूर। सर इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और क्वेश्चन है। अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं सर, 2 मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे, अब 75% अटेंडेंस वापस से कंपल्सरी है। सर ऐसे एनवायरनमेंट में और जो न्यू एकेडमिक कैलेंडर है उसमें सर ऐसा हो गया है कि ऑलमोस्ट एवरी मंथ स्टूडेंट हैज टू टेक एग्जाम। Sir, in this environment, how is one expected to take part in extracurriculars or also dream of becoming an entrepreneur? देखिए, चैलेंज है डेफिनेटली, बट इसी में से रास्ता भी निकालना है। ओके, आप आईएम्स का एग्जांपल लीजिए, वहाँ 4 घंटे से ज्यादा जो है स्टूडेंट नहीं सो पाते। हाँ, ठीक है, तो लाइफ में इस टाइप का चीजें तो आपको चैलेंजेस तो फेस करनी है, और इसी में से आपको जो है वे आउट भी निकालना है। तो बेस्ट थिंग इज प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप जो है टाइम मैनेज कर पा रहे हो, आप टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप दोनों जगह अच्छा करो। सर आउट ऑफ मेनी थिंग्स अगर आपको कोई एक चीज चुननी हो एचबीटीयू की जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो वो क्या होगा? सीनियर्स और जूनियर्स के बीच का बॉन्ड। ये जो एचबीटीआई का जो यूएस मतलब एचबीटीआई की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ये कहीं पे नहीं। मैं आईआईटी कानपुर में भी रहा हूँ, मैं आईआईटी रुड़की में भी हूँ, तो जो बॉन्ड सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में जो वो एचबीटीआई में, आप कभी फैक्ट्री ट्रेनिंग के लिए जाइए, वहां पे आपका कोई भी एचबीटीआई का सीनियर होगा ना, कितने भी सीनियर पोजीशन पे हो, दौड़ा दौड़ा आपसे मिलने आएगा कि मेरे इंस्टीट्यूट से कोई आया है। ये बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्पेशल है हर कोटियंस में, और आई होप कि ये फ्यूचर में भी जो है ऐसे ही होना। सर बीच में जब कोविड टाइम आया तो थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन आया, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वापस उसको मेंटेन कर सकें। हम लोगों ने जितनी स्टोरीज अब तक कवर करी उसमें सारे एलुमनाई ने ये बात स्पेसिफिकली मेंशन करी कि सीनियर जूनियर बॉन्ड। सर ड्यूरिंग योर डेज एज अ कॉलेज स्टूडेंट एचबीटीआई क्या फन थिंग्स आप करते थे, और अगर चेंजेस की बात करें तो कंपेयर टू करंट बैच आप क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स, फैकल्टी, फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स? चेंजेस डेफिनेटली हैं स्टूडेंट्स में, पॉजिटिव कि दे आर मोर डिमांडिंग एंड दे आर मोर ओपन। हम लोग टीचर से बहुत डरते थे, यू नो, टीचर अगर जो हमारे रामा साहब आ रहे होते थे तो हम लोग रास्ता बदल लेते थे। तो सीनियर से भी? हाँ, सीनियर रैगिंग बहुत होती थी जो है, ठीक है, लेकिन रैगिंग के बाद जो बॉन्ड बनता था जो है, ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग। अभी चेंजेस बहुत पॉजिटिव साइड पे है। अभी स्टूडेंट्स जो है एक्सप्लोर करते हैं चीजें। जरूरी नहीं है, उनकी अपनी एक चॉइस है कि हमें ऐसा करना है, ये हमारे एस्पिरेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क। हम लोग के टाइम में थोड़ा सा सोसाइटी ड्रिवन रहता था, पेरेंट्स का भी थोड़ा प्रेशर रहता था। अभी स्टूडेंट्स बहुत ओपन हैं, और ये बहुत पॉजिटिव है कि वो अपने हिसाब से चीजों को, अगर इस जॉब में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो बड़े क्लियर हैं वो अपने जो है फ्यूचर गोल्स के लिए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। सर उस टाइम पर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में रैगिंग कल्चर बहुत प्रेजेंट रहता था। कोई अगर इंस्टेंस सर आपके दौरान हुआ हो तो आप शेयर करना चाहें? रैगिंग पॉजिटिव साइड पे होता था, बट हुआ क्या कि धीरे धीरे जो है उसमें जो है नेगेटिविटीज आती गई,
नॉट इन HBTI, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो है चीजें ऐसी हुई जो जिसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नमेंट को जो है डिसीजन लेने पड़े। अगर पॉजिटिव वे में होता तो ये चीजें जो है अच्छी रहती, बट ठीक है, अभी रैगिंग नहीं होनी चाहिए, वो ठीक भी है, क्योंकि अगर कोई चीज जो है किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव, रैगिंग को दूसरे तरीके से पॉजिटिव वे में इंटरेक्शन होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, जो है उसको आप पॉजिटिव साइड में जो है लेके आइए, तो उससे बहुत अच्छा है। Sir, welcome to this rapid fire round. Here we'll be asking you short questions and we expect quick and crisp answers. Sir, your favorite Bollywood actor and actress? अमिताभ बच्चन एंड काजोल। Sir, recent Bollywood movie you have watched? ब्रह्मास्त्र। Sir, आपको अच्छी लगी वो? चलेगी। Sir, any dream car or bike you always wish to buy or own it? BMW। Sir, your favorite vacation destination? दुबई। Sir, you have been there? Yeah. Sir, best restaurant around in Kanpur where you love to enjoy your favorite dish? लैंडमार्क। And sir, dish? डिश तो बहुत ट्रेडिशनली रहती है, जो है यू नो एनीथिंग और पनीर। Sir, if you are given a chance to live someone else's life right now, who would that be and why? Right now means the person should be alive or like means Sir, जैसे any- किसी की लाइफ अगर आपने आइडलाइज करी हो या अभी भी करते हैं, सपोज लाइक आई विश टू लिव अ लाइफ ऑफ विराट डॉक्टर अब्दुल कोहली। कलाम। सर, योर फेवरेट सिंगर एंड सॉन्ग? किशोर कुमार। सॉन्ग इज रुक जाना नहीं तू कहीं हार, दैट इज स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स। सर, रिसेंटली संवाद इवेंट में वी हैव हर्ड यू सिंगिंग सो मेलोडियसली। सर, अगर आप इस सॉन्ग की एक दो लाइन गा सकें। डेफिनेटली। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक थैंक यू सर। सर, हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स इन कॉलेज? यू सो मेनी। सर, जिनके साथ आपको हैंग आउट करना पसंद हो या फ्रेंड, हाँ सर, बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड, माय सीनियर राठौर जी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो उनके साथ जो है हम लोग बहुत चीजें शेयर करते हैं, आगे के लिए कैसे प्लान करना है डिपार्टमेंट शेयर, तो यहाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड। सर, बिसाइड्स केमिकल इंजीनियरिंग कोई अगर आप ब्रांच आपको चूज करनी होती जो आपको पढ़ने में भी मन करता और पढ़ाने में भी, तो वो कौन सी होती? कंप्यूटर साइंस। रीजन बीइंग कि केमिकल इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप, बहुत यूज है, और विदाउट कंप्यूटर सारी ही ब्रांचेस में जो है कंप्यूटर साइंस का जो है यूज है, तो एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो कंप्यूटर साइंस में सारे स्टूडेंट्स को होना चाहिए। सर, व्हाट डू यू लव टू डू इन योर फ्री टाइम और ड्यूरिंग वीकेंड्स? लिसनिंग सॉन्ग्स और फ्रेंड्स के साथ मिलना। सर, व्हाट आर योर रिटायरमेंट प्लान्स अगर आपने सोचा? एक ऑनलाइन वेंचर बनाना है जिसमें एजुकेशन बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे जो है एजुकेशन, बहुत सारे उसके वो हो सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 12th लेवल एजुकेशन एंड काउंसलिंग, कि अभी पेरेंट्स बहुत उनको क्लैरिटी नहीं रहती है कि कैसे जो है बच्चे का कैरियर शेप, तो स्टूडेंट्स को भी नहीं रहती। हाँ, स्टूडेंट्स को भी नहीं रहती है। तो अगर कोई जेन्युइन ऑल्दो प्लेटफॉर्म मतलब लोगों ने स्टार्ट किया है जो है इस डायरेक्शन में भी, जो है बहुत लोगों ने ऐसे अपनी वेबसाइट्स बना के, बट अभी भी इसमें जो है बहुत स्कोप है एक जेन्युइन एडवाइस कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की बेसिस पे जो है उनके जो है एकेडमिक्स के बेसिस पे उनको गाइड करना कि उसको क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, और कॉस्ट इफेक्टिव जो है, मतलब है चीजें हैं, एजुकेशन अवेलेबल है बट थोड़ा कॉस्टली। अगर इसको जो है समहाउ जो है कॉस्ट को बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे ले जाया जाए और ऐसी ऑनलाइन एजुकेशन सबको अवेलेबल कराई जाए, तो शायद जो है ये मेरा प्लान है कि अगर इसमें कुछ भी हम अपना कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर फॉर दैट रैपिड फायर। सर, एट द एंड अगर आप कोई मैसेज शेयर करना चाहें एचबीटी के स्टूडेंट्स से या यहाँ के एलुमनाई से,
सर शेयर। यस, मेरा एक मैसेज है सर कि जहां पे भी रहिए खुश रहिए, बेस्ट के लिए आप एस्पायर करिए, एफर्ट करिए, बट अवेलेबल के साथ जो है उतना ही खुश रहना चाहिए। अदरवाइज लाइफ हमेशा आपकी फ्रस्ट्रेशन में, जो भी सर्कमस्टांसेस है उसमें से अपने लिए बेस्ट ढूंढिए और आगे के लिए हमेशा एफर्ट करते रहिए, जो है प्रिपरेशन अवेलेबल के साथ कॉम्प्रोमाइज भी थोड़ा करिए और खुश रहिए।